ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਆਈ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਸ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਇੱਧਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਤੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਈਪੀਸ ਲੈਂਸ। ਆਈਪੀਸ ਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ F0, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਫॉर ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ 2F ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ A ਤੇ B, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ A ਤੇ B, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ F ਤੇ 2F ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ, 2F ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਦੋ ਰੇਸ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ A' ਤੇ B'। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We arrange this eyepiece lens in such a way so that ਕਿ this image, ਇਹ ਇਮੇਜ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਆਈਪੀਸ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਈਪੀਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਪੀਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੇਜ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ A' B' ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਈਪੀਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ FE ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ A' ਤੇ B'। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੇ 2F ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, 2F ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ
ऑब्जेक्ट नू जिहड़ा कि हुण ऑब्जेक्ट बन चुका इहदे वास्ते इहनू इहदी फोकल लेंथ दे अंदर रखना पैना ते उहने सेम साइड ते इमेज वड्डा करके बना देना। सो इत्थे असीं देख रहे हैं कि ये दो लेंस दा ये कॉम्बीनेशन आ ते फाइनल इमेज सानू की बनिया, फाइनल इमेज मिलिया A डबल डैश B डबल डैश। ऑब्जेक्ट कौन सी? AB सी। हुण इहदे च आपां मैगनीफिकेशन देखते हैं, इहदा मैथेमैटिकल वर्क थोड़ा लंबा रहेगा। मैगनीफिकेशन तुसी सारा लिख लेना इहदे विच कि पहले आईपीस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस नूं असीं किस तरीके नाल सैट कीता वा। मैगनीफिकेशन की आ? मैगनीफिकेशन आ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। मतलब तुसी पूरा लिख लो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। आपां की लिखिया सी? बीटा अपॉन अल्फा। हुण देखो ए फाइनल इमेज आ, ये कितना एंगल पा रहा है इस आईपीस लेंस के उपर? ये बिल्कुल सीधी लाइन आ, ये वाला एंगल आ बीटा, ते आपां इत्थे बीटा बना लिया। हुण देखो साडी शर्त की सी? एंगूलर मैगनीफिकेशन दे विच साडी शर्त सी कि ऑब्जेक्ट ते इमेज सेम जगह ते रख के एंगल जिहड़े आ ऑप्टिकल सेंटर दे उपर बनाए जाणगे। ते आपां की करदे आ, इस लेंथ नूं अगे की करदे आ, इत्थे थोड़ा जिहा अगे बना लैंदे आ ते मैं इत्थे मान लेना P। हुण देखो इत्थे की आ, मैं इस तरीके नाल इहदी कंस्ट्रक्शन कीती आ कि AB इज इक्वल टू PB डबल डैश बन जे। B डबल डैश नीचे पहला ही बनिया सी, PB डबल डैश बन जे। सो AB इज इक्वल टू PB डबल डैश। सो आपां हुण देखना वा कि ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ पहला कित्थे सी? इत्थे सी। असीं इत्थे इमेजिन कीता ये कितना एंगल बनाउंदा है इस लेंस दे नाल? ये वाला एंगल कितना बनेगा? अल्फा एंगल बनेगा। हुण असीं ये डायग्राम दे विच दोनों एंगल बना लए आ। आपां किस तरह लिख सकते हैं? आपां लिख सकते हैं P, इनू लिख लेने आ C1, इनू लिख लेने आ C2। अल्फा एंगल की आ? बीटा पहला लिख लेने आ, बीटा एंगल है एंगल A डबल डैश C2 B डबल डैश, एंगल A डबल डैश C2 B डबल डैश। ते अल्फा एंगल की बनेगा? एंगल P C2 B डबल डैश, एंगल P C2 B डबल डैश। इन्हां एंगल्स नूं हुण की आ डिस्टेंस दे विच बदलना वा, ते डिस्टेंस दे विच बदलण लई असीं की कवांगे कि ये एंगल मान लो दोनों की आ छोटे आ, ते जे छोटे एंगल आ ते आपां इदां लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा, ते बीटा की लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू टैन बीटा। हुण टैन अल्फा किहड़ी ट्राइंगल चों कड्डांगे? ट्राइंगल PC2B डबल डैश। मतलब मैं इत्थे लिख नहीं रहा, तुसीं लिख लेना कि इन ट्राइंगल PC2B डबल डैश दे विच टैन अल्फा की वैल्यू की आएगी? PB डबल डैश अपॉन क्या आएगा? C2B डबल डैश, C2B डबल डैश। टैन बीटा की वैल्यू कित्थों कड्डांगे? टैन बीटा की वैल्यू कड्डांगे A डबल डैश C2B डबल डैश दे विचों। इस ट्राइएंगल दे विचों टैन बीटा की वैल्यू कड्डांगे, साडे कोलों की आएगा? A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन लेंथ की बनेगी? लेंथ तो वही रहेगी C2B डबल डैश, C2B डबल डैश। हुण आपां ये जिहड़ी साडी पहले नंबर ते की सी एंगूलर मैगनीफिकेशन सी, एंगूलर मैगनीफिकेशन दे विच अल्फा ते बीटा की वैल्यू की जरूरत सी, एंगूलर वैल्यू सी। आपां इहनूं की आ डिस्टेंस दे विच बदलिया, टैन अल्फा लगा के डिस्टेंस दे विच बदल लिया। हुण आपां ये जिहड़ी 1 नंबर ते 2 नंबर इक्वेशनस आईयां वा इन्हां नूं असीं सैट करके लिखांगे तो साडे कोलों मैगनीफिकेशन की आएगी? बीटा की वैल्यू भरदे पहला, बीटा की वैल्यू की आ? A डबल डैश B डबल डैश C2B डबल डैश। अल्फा की वैल्यू की आ? अल्फा की वैल्यू साडे कोलों आ PB डबल डैश C2B डबल डैश। ये साडे कोलों अल्फा ते बीटा दीयां वैल्यूज भरतियां। जेकर असीं इहनूं सॉल्व करिए तो सॉल्व करके साडे कोलों की हुंदा? A डबल डैश B डैश, ते इधर की आएगा PB डबल डैश। हुण देखो PB डबल डैश, PB डबल डैश किहदे बराबर आ? AB दे बराबर आ, ते मैं इत्थे लिख दिना A डबल डैश B डबल डैश इज इक्वल टू AB। ए की आ? A डबल डैश B डबल डैश फाइनल इमेज, मतलब हाइट ऑफ
फाइनल इमेज ते ए बी की आ हाइट ऑफ, इत्थे भी लिख लो हाइट ऑफ फाइनल इमेज ते ए की आ हाइट ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट। हुण देखो मैग्नीफिकेशन असी एंगूलर कड्डी, एंगूलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला से बीटा अपॉन अल्फा लगाया, पर मैग्नीफिकेशन की आ, मैग्नीफिकेशन तो यही है ना कि फाइनल इमेज ते जिहड़ा साडा इनिशियल ऑब्जेक्ट सी ओहदी रेशो उहनूं कंपेयर करके दसो, कंपेयर करके दसता। हुण देखो मैं यह वाली जिहड़ी इक्वेशन मेरे को आई आ m इज इक्वल टू a डैश b डैश इज ए बी, मैं इनू की करदा ऊपर नीचे a डैश b डैश के नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर देना, a डैश b डैश ऊपर नीचे डिवाइड करता तो मैं इनू इदां लिख सकदा मैग्नीफिकेशन इज a डबल डैश b डबल डैश, ए वाला इत्थे लै जाना, इनू इधर मतलब है डिनोमीनेटर जिहड़े आ एक्सचेंज कर दिंदा वा ते ये की आ गया a डैश b डैश ऊपर a डैश b डैश अपॉन ए बी। हुण देखो इधर की आया a डबल डैश b डबल डैश a डैश b डैश, इधर की आया a डैश b डैश अपॉन ए बी। ये की आ, ये आपां लिख सकते हैं एम ई, मतलब एम आई पीस वास्ते एम ई इंटू ए किया एम ओ, मैं दसदा किवें आ मैग्नीफिकेशन फॉर आई पीस लेंस, आई पीस लेंस वास्ते मैग्नीफिकेशन की होनी आ इमेज दा साइज ए डबल डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, इस तरीके नाल करांगे तो एम ई बनेगा। ये वास्ते मैग्नीफिकेशन कल्ले वास्ते कैलकुलेट करनी होए की आएगी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ਆਪਾਂ कर लिया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की आ ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन आ। हुण देखो इत्थे सानू ये सीखण लई मिलदा वा कि जदों असीं दो लेंस लगाए होए आ ते दोवां लेंस की इकट्ठी मैग्नीफिकेशन करदे पए आ ते ओह इकट्ठी मैग्नीफिकेशन सिंपल प्लस नहीं हुई, वो की हुई आ मल्टीप्लाई हुई आ, मतलब मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, मल्टीप्लाई करके जो एक डिवाइस बनया वा वो की आ टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ। सो असीं इहदे देखिया कि ये की सिंपल कोई सम नहीं आ, ये मल्टीप्लीकेशन आ। हुण आपां इहदे विच एम ई ते एम ओ नूं वक्खरे वक्खरे तौर ते सॉल्व करांगे। असीं पहलां एम ओ नूं सॉल्व कर लैंदे आ। टू फाइंड एम ओ इस इक्वेशन को कोई नंबर दे दो, 3 नंबर दे दें। ये हुण आपां एम ओ वक्खरे तौर पर कैलकुलेट करना, एम ई वक्खरे तौर पर कैलकुलेट करना। एम ओ कैलकुलेट करांगे तो एम ओ वैसे है कि आ सानू पता एम ओ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ते असी इनू किद्दां लिखते हैं ए डैश बी डैश किदे बराबर आ आई ते ए किदे बराबर आ यू ओ दे बराबर आ ते सानू पता मैग्नीफिकेशन की हुंदी आ वी बटा यू हुंदी आ। मैं इत्थे लिख लेना वी पॉजिटिव यू नैगेटिव। मैं इत्थे फार्मूला वरतिया वा मैग्नीफिकेशन किदे बराबर हुंदी आ इमेज दी हाइट बटा ऑब्जेक्ट दी हाइट ते जां वी बटा यू हुंदी आ, सानू ये भी पता वा। ते वी की आ इहदे विच पॉजिटिव आ ते यू की आ नैगेटिव आ। वैसे मैं इदां भी कह सकदा ए डैश बी डैश नीचे नूं आ ए बी की आ उपर नूं आ, ते जेकर अपर वालियां जिहड़ियां चीज़ां पॉजिटिव आ नीचे वालियां चीज़ां नैगेटिव आ ते एक नैगेटिव साइन इत्थे भी आ जाएगा। तो आपां तुसीं इदां नहीं समझना, तुसीं इहनूं इदां समझो ए डैश बी डैश ए बी दी आपां वैल्यू वी अपॉन माइनस यू भर ली आ। आपां कैलकुलेट करना वा एम ई, आपां एम ई नूं कैलकुलेट करते हैं। टू फाइंड एम ई, हुण देखो जां ते असीं लास्ट आर्टिकल के आधार पर सीधा ही कह दी, असीं लास्ट आर्टिकल सिंपल माइक्रोस्कोप च की क्या सी मैग्नीफिकेशन किदे बराबर आ, असीं कढ़िया सी मैग्नीफिकेशन इज 1 प्लस डी अपॉन एफ, यह चीज़ कढ़ी सी। ते हुण ये लेंस की आ आई पीस लेंस आ, मैं इत्थे ई लगा देना, जां ते मैं वो सारा आर्टिकल
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਫॉर ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਫॉर ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸਡ ਆਈ, ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤ ਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। मैं 3 नंबर 4 नंबर ते 5 नंबर के आधार ते 3 नंबर इक्वेशन नूं फिर लिखदा वां फ्रॉम 3, 4 एंड 5। 3, 4 ते 5 के आधार ते मैगनीफिकेशन की बनी, सानू पता मैगनीफिकेशन बनी m इज इक्वल टू m ई दी वैल्यू की आई साडे कोलों 1 प्लस d अपॉन एफ ई। ते इधर की बनी ते इधर v माइनस u। मैं इत्थे एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, इत्थे ओ लाए आ मतलब v की आ ऑब्जेक्टिव लेंस वास्ते इमेज की दूरी तो u की आ ऑब्जेक्टिव लेंस वास्ते ऑब्जेक्ट की दूरी। मैगनीफिकेशन ओवरऑल की आई आ, इस नैगेटिव साइन नूं बाहर कड्डांगे तो नैगेटिव आई आ। ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि मैगनीफिकेशन इज इक्वल टू ए माइनस साइन बाहर आएगा माइनस इदा लिख लेने v बटा u ते अगे 1 प्लस d पॉन एफ ई। आ वाली वैल्यू मिली। नैगेटिव साइन का मैगनीफिकेशन की मतलब है, इत्थे नैगेटिव साइन का मतलब है कि इमेज इनवर्टेड बनया। तो सानू पता है साडा इनिशियल ऑब्जेक्ट सीधा सी, इत्थे इनवर्टेड बनया। पर जेकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे विच इनवर्टेड भी बनेगा उहदा कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट आ ते बहुत छोटे ऑब्जेक्ट वास्ते वो इमेज सीधा बने जां पुट्ठा बने उहदी कोई भी ओरीएंटेशन का मतलब नहीं रह जाता। जेकर मैं कहां कि इत्थे मेरे डॉट आ ते डॉट दी की सीधा जां की पुट्ठा, इहदा तो कोई लॉजिक ही नहीं हैगा। इस करके बेशक असीं इत्थे कहने आ कि मैगनीफिकेशन जिहड़ी आ वो इनवर्टेड आ, पर मैगनीफिकेशन है कितनी आ वो असी इस फार्मूले के नाल कैलकुलेट कर लवांगे। हुण जेकर असी गल करिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की कि माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी आ, तो असी इस केस दे विच माइक्रोस्कोप की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एल दे नाल लिखते हैं एल। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की आ, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस। तो ये कितनी बनेगी, ए वाली की आ, ए वाली दूरी हैगी आ वी ओ, मतलब इत्थों तक की आ वी ओ वा, इस लेंस का ये इमेज आ। इधर की आ, इधर यू ई आ, इसका की आ ऑब्जेक्टिव की वी नॉट प्लस यू ई। ये की होएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ होएगी। आप इस इक्वेशन नूं 6 नंबर दे देंगे ते इस इक्वेशन नूं 7 नंबर दे देंगे। ते हुण देखते हैं रिलेशन बिटवीन एफ नॉट एंड एल। असी देखते हैं रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ। हुण देखो जे एल ते एफ नॉट दे विच रिलेशन पता करना होवे ते असी किवें कैलकुलेट करांगे। मैं इहनूं थोड़ा जिहा मिटा दिना, आस करदा तुसीं लिख लिया होएगा, इत्थों थोड़ा जिहा मिटा दिना। ते देखो यह जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ ਇਹਦਾ इमेज इधर कदों बनना सी जदों ये फोकल लेंथ तो पिछे हुंदा, ते पिछे ते ये इत्थे भी हो सकदा सी, इस जगह ते बिल्कुल थोड़ा जिहा पिछे इत्थे भी हो सकदा सी। ते मैं कहना आपां इदां कर लैंदे आ यू नॉट, ये की आ ऑब्जेक्टिव लेंस दा यू नॉट आ, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब जे इस ऑब्जेक्ट नूं इस एफ नॉट तो थोड़ा जिहा पिछे रखीए तो इमेज तो इधर ही बनना, क्योंकि निज़म कहता है। पर जेकर आप कहीए कि एफ नॉट तो यू नॉट लगभग बराबर जी आ, फिर आप इदा लिख लें कि यू नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ नॉट। तो जेकर इदा होएगा फिर इमेज कित्थे बनता वा, क्योंकि सानू पता वा फोकस तो बिल्कुल लागे होएगा तो इमेज किधर नूं जाई जाना, इनफिनिटी वाल नूं जाई जाना। आप मान लिया इत्थे कि जेकर ये वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल इत्थे होएगा तो इमेज कित्थे बनना वा, बिल्कुल इस आई पीस लेंस दे बिल्कुल नाल बनना वा। तो मैं लिख लेना आई पीस लेंस दे नाल बनया वी ई, मतलब इहदा वी ओ रहेगा वी ओ किदे बराबर बनेगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बनेगा। लेंथ ए चीज़ आ
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ l ਅਪੋਨ u ਨੋਟ, v ਨੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ l ਲਿਖ ਲਿਆ, 1 ਪਲਸ d ਅਪੋਨ f e। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ m ਨੋਟ m e ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ v ਨੋਟ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ u e, ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ v ਨੋਟ u e ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ VO ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ v ਨੋਟ ਹਟਾ ਕੇ l ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਪਰ l ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨੇ f ਤੇ 2f ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ f ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ u ਨੋਟ ਤੇ f ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ v ਨੋਟ l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ v ਨੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ l ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। l ਲੈਂਥ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, u ਨੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਰੀ, ਤੇ d ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਲਈ ਫਿਕਸ ਆ, ਤੇ f e ਆਈਪੀਸ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਫॉर ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ।